हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं लीगल आइज। आज मैं आपको एक नए टॉपिक से अवगत कराता हूं और उस टॉपिक का नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा और कई बार हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई केस कोर्ट तक पहुंचता है तो एक प्रॉपर एडवोकेट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ते हैं, कोर्ट में प्लीड करते हैं। सो दैट पर्सन, अ पर्सन appointed by the state government to plead or to appeal before the trial, before the court, is called public prosecutor. Public prosecutor may be of different kinds, like public prosecutor, additional public prosecutor, assistant public prosecutor, special public prosecutor. These all are the different terms assigned different works as per the गवर्नमेंट ऑर्डर, करेक्ट। सो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 हैज़ गिवन द प्रोविजन ऑफ पीपी, राइट? पीपी, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर and BNSS, BNSS 2023. In that, Section 18 is dealing with this. So, under Section 18, you will be finding that there are provisions for the appointment of public prosecutor and additional public prosecutor. Only two things has been discussed. Means only two posts have been discussed in Section 18. Okay, Section 18. So Section 18 only for, okay. So public prosecutor is required where, right? You will find that I have already mentioned over here that public prosecutor is required in each court to represent either the central government or state government, and that's why there is a provision for the appointment of public prosecutor or an advocate to plead on behalf of the state, either by the state government or central government. So appointment is done or appointment is made either by the central government or the state government. Okay, first thing. Second thing, the लोकेशनल एस्पेक्ट मीन्स जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट, अथॉरिटी कोर्ट की बात जो करते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। तो पहला देखिए, ये है, पहला है हाई कोर्ट, करेक्ट। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड थर्ड है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज रिक्वायर्ड इन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो वेन एवर देर इज अ टॉक और देर इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, देयर आर टू authorized entity to appoint them. What the entities are there? What they are? This is here. Okay. In High Court, if any public prosecutor or additional public prosecutor is required to be appointed, then they will be appointed either by the center or by the state government. So central government and state government as and when required. Okay, according to the requirement. So central government also can also appoint public prosecutor and state government can also appoint public prosecutor in high court. Similarly, in district, central government, if thinks so, if it is required, can also appoint public prosecutor or additional public prosecutor, and similarly the state government can also appoint public prosecutor or additional public prosecutor. Now, in the area of national capital territory of Delhi, there is a provision that in that area only central government can appoint public prosecutor. Okay, so it is written in section 18 of the BNSS 2023. Now, next is appointment of the public prosecutor in district. Okay, this is district. So when there is the need of appointing any public prosecutor or additional public prosecutor in district, especially by the state government, there the panel is prepared by the district magistrate.
So there are the names, a list of names or list of persons or the panel of names of the person which is prepared by the district magistrate of that district, and from that panel itself state government appoints a certain person either as a PP public prosecutor or additional PP. Okay, so from the panel of the names or list provided or prepared by the district magistrate, from there only anybody can be appointed. First thing. Second thing, if any other feeder officers or persons are available in the feeder cadre, then from that cadre another person or a person can be selected for the appointment as a public prosecutor or स्टेट फीडर कैडर मतलब कि एक स्टेट सर्विस होता है, जुडिशल सर्विसेज है, उस सर्विस प्रोसिक्यूशन सर्विस में और भी एपीओ भी हैं, राइट, या एडिशनल एपीओ एडिशनल पीपी भी हैं, तो ऐसे एडिशनल पीपी अगर हैं तो उनका प्रमोशन पीपी के तौर पे हो जाएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तो उनका प्रमोशन एडिशनल के तौर पे हो जाएगा अकॉर्डिंगली। मतलब फीडर कैडर मतलब होता है जस्ट बिलो द कैडर विच इज़ रिक्वायर्ड एंड which is awaited for the promotion to the next post, that is like public prosecutor or additional public prosecutor. So public prosecutor के लिए feeder cadre additional PP हो गया और additional PP के लिए feeder cadre जो है APP हो जाता है, करेक्ट। ये क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें सेक्शन 18 में ये क्लियर कट लिखा गया है कि नो बडी कैन बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट otherwise than the name of the persons impaneled by the district magistrate. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर अदर पर्सन को होगा तो वो होगा कहाँ से, फीडर कैडर से, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, जो फीडर कैडर की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करता हूँ कि फीडर कैडर की बात जब आती है तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है सेक्शन 18 में, उसमें और भी एक प्रोविज़न है कि एडिशनल पीपी या पीपी, करेक्ट, इन दोनों लोगों को अदर प्रैक्टिस पर्सन्स, एडवोकेट बीइंग इन प्रैक्टिस फॉर 7 years, मोर देन 7 years, मिनिमम 7 years से रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस में, देन ही कैन ऑल्सो, मतलब एडवोकेट हैविंग द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए एडिशनल पीपी और पीपी provided the name is included in the panel of the names prepared by the district magistrate. First thing. Second most important point is कि अगर कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की ज़रूरत हो गई, जैसे मान लीजिए कोई टाडा के केस के अंतर्गत है, या स्पेशली मान लीजिए कोई ऐसा कांड और इंसिडेंट हो गया जिसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत है, ऐसे में अगर किसी को अपॉइंट किया जाए तो उसके लिए भी कहा गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम 10 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट, और आपको पता ही है जब एज एडवोकेट मिनिमम 10 year का एक्सपीरियंस है देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, करेक्ट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो तो आपने देख लिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पीपी या एडिशनल। पीपी के लिए कितना एक्सपीरियंस था, 7 years का, और स्पेशल के लिए कितना था भाई, इट इज़ 10 years, करेक्ट। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या एडवोकेट ही पैनल में आएंगे या एडवोकेट को ही अपॉइंट किया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक प्रॉपरली डिफाइन किया गया क्लाउज 9 में, जो कि सेक्शन 18 BNSS के सेक्शन 18 का क्लाउज 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फीडर कैडर का, कि मान लीजिए कि एपीओ है ना, एपीओ है या एडिशनल पीपी है, करेक्ट, राइट, या स्पेशल पीपी है, ऐसे पोस्ट पे भी अगर वो काम कर रहा है, इट मीन्स दैट हिज सर्विस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर कैलकुलेशन इन प्रैक्टिस। सो वेदर दे आर इन प्रैक्टिस और नॉट, देन इट विल बी एज्यूम, इट विल बी कंसिडर्ड दैट ही इज़ इन प्रैक्टिस और दे आर इन प्रैक्टिस। मतलब यह हुआ कि आइदर एडवोकेट के एडवोकेसी या प्लीडिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए, करेक्ट, या
एडवोकेट का प्रैक्टिस होना चाहिए, प्लीडिंग एज एडवोकेट, ओके या सर्विस में भी है, उस तरह के सर्विस में भी है, प्रोसिक्यूशन में एपीओ के तौर पे, एडिशनल पीपीओ पीपी के तौर पे, इन सब चीज़ में अगर है देन ऑल्सो ही विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो गाइज पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या हुआ, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लीगल अथॉरिटी और लीगल पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट to plead or to appeal or to lead the case on behalf of the central or state government as and when it is required. Correct? So for conducting any pleading or proceeding before the court authority. Correct? ये डिफिनेशन के तौर पर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं क्लियर कट बता चुका हूँ कि अगर उसकी बात हो रही है कि भाई एलिजिबिलिटी, तो पीपी और एडिशनल पीपी के लिए प्रैक्टिस एज एन 7 ईयर्स बता चुका हूँ मैं, स्पेशल के लिए 10 ईयर्स है, और अगर सर्विस में है देन ऑल्सो दैट विल बी काउंटेड। ओके चलिए लास्ट पॉइंट जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है वो ये है कि सेक्शन 19 जब आप पढ़ेंगे तो जिसमें एपीपी के लिए, मतलब एपीपी के लिए सेक्शन 19 में डिस्कस किया गया बीएनएसएस के संहिता में, है ना, बीएनएसएस में सेक्शन 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है सेक्शन 18 में, है ना, पीपी एंड एडिशनल पीपी, करेक्ट। जबकि सेक्शन 19 जो है वो बेसिकली सिर्फ एपीपी की बात किया है। तो एपीपी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जिसका जितने भी एलएलबी कैंडिडेट्स होते हैं या एलएलएम किए हुए हैं जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं एग्जाम एज पर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो पीटी मेंस इंटरव्यू लेती है, यूपीएससी ले रही है बहुत से एग्जाम में तो मेंस और इंटरव्यू लेती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न, बट एग्जामिनेशन के थ्रू एपीपी का अपॉइंटमेंट होता है। चलिए अब यहाँ पे होता है कि वंस यू आर पोस्टेड एज ए एपीपी या एडिशनल पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, then what will happen then, on promotion you can reach to this level, director of the prosecution in the state. Okay, director, deputy director means from assistant director of prosecution, deputy director of prosecution और director of the prosecution, जहाँ आप पूरे legal system के head के तौर पे काम करेंगे। Okay, so guys I hope it must have cleared your thought with regard to the public prosecution or public prosecutors. Okay, and if you are preparing for any examination like judicial services or CLAT examination, you can give your comment first. Second thing, for your LLB examination or LLB preparation, if you want any topic to be discussed, you can also give your comment for that topic. I will be providing that topic for your reference or for your clarification of the thought. So guys, keep watching and stay tuned to this channel Legal Eye. And don't forget, please do not forget to share with others. Thank you.